Now children, based on the concept of laws of exponents and decimal number system, we'll solve some questions on the board. Okay, now just see on the board children. See the first question, using laws of exponents solve. A part 2 to the power 5 into 5 to the power 5. Now we will use the laws of exponents to solve these questions. So you can see children, in the A part that the base is different and the power is the same. Base is different and the exponent is the same. So in this case, we will just apply the fourth law of exponent, that is a to the power m into b to the power n is equal to a into b whole to the power m. Is it clear? When the base is different and the powers are same. So we will use the fourth law. So just here children, here the base is 2 and here the base is 5 and in both the case exponent is the same. यहाँ पर base 2 है और यहाँ पर 5 है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों जगह exponent क्या है, 5 है. तो हम क्या लेंगे, we will use the fourth law of exponent. So that is 2 into 5 whole to the power 5. So we have to mention the law. आप यहाँ पे जो भी लॉ यूज करेंगे उसको मेंशन करेंगे. सो वी कैन राइट हियर, सिंस a to the power m into b to the power m is equal to a into b whole to the power m. This is the fourth law of exponent, that is when the base is different and the exponent is the same. जब base different है और exponent यदि same है तो आप base का product लेंगे और power को same रखेंगे. Is it clear? So you can see here children, 2 into 5, that is 2 5s are 10 whole to the power 5. So this is the answer. Is it clear children? 2 into 5 is 10 और 10 इस होल की पावर क्या है, 5 है. तो यहाँ पे 5 हमने एक्सपोनेंट लिख दिया. इट कैन बी रीड एज 10 raised to the power 5. So this is the answer for the A part. Now children, just come to the B part. This is the B part. Again you have to use the law of exponent. 25 to the power 4 divided by 5 to the power 3. अब 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 to the power 2. 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है. तो 25 को हम सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 2. हमने सिर्फ 25 को सब्सटीट्यूट किया है 5 की पावर 2 से. इस होल की पावर हमको क्या दे रखी है, दैट इज 4. हमने सिर्फ एक चीज़ करी है इसमें, वी हैव जस्ट रिटन 25 एज 5 to the power 2. Power 4 will be written here as it is. So that is 5 to the power 2 whole to the power 4. Then we can write here divided by 5 to the power 3. Now that is, अब कौन सा लॉ यूज करेंगे, वी विल यूज द थर्ड लॉ, दैट इज पावर ऑफ पावर. जब पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. वी यूज टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट्स. तो अब हम यहाँ पे किसका प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज 2 और 4 का. सो 2 4s are 8. सो वी कैन जस्ट राइट हियर, वी विल जस्ट यूज द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज 5 to the power 2 into 4. 2 into 4 divided by 5 to the power 3. Again you have to mention the law. आपको जो भी लॉ आप यूज कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है, इट्स कंपल्सरी. सो वी कैन राइट हियर, सिंस a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. a to the power m whole to the power n. हमें क्या करना है, ये हमारे पास थर्ड लॉ है. यदि बेस की पावर दे रखी है और उसकी भी पावर हमें दे रखी है तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स का, दोनों एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट ले लेंगे. दिस कैन बी रिटन एज, दैट इज 2 4s are 8. सो 5 to the power 8 divided by 5 to the power 3.
अब हमारे पास बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन का है. सो व्हेन द बेस इज सेम एंड द एक्सपोनेंट आर डिफरेंट and the sign is of division, we have to use the second law of exponent, that is 5 to the power 8 minus 3. क्या बोलता है second law of exponent? Since 8 to the power m divided by 8 to the power n is equal to 8 to the power m minus n. This is the second law of exponent. जब बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और साइन यदि डिवीजन की है तो आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का डिफरेंस लेंगे. यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ द एक्सपोनेंट. सो इट कम्स आउट टू बी 8 minus 3, that is 5 to the power 5. So this is the required answer. Is it clear, children? I hope you are getting. Now we'll just solve the next question. So just see here, children. Now the next question is, that is you have to find out the prime factors. अब आपको पता होना चाहिए हम प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन द प्रीवियस क्लास. आपने पहले भी सीखा है कि प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं. तो अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के और फिर उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे. इज इट क्लियर? वी विल राइट द आंसर बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स एंड फाइनली वी विल राइट इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, चिल्ड्रन. नाउ जस्ट सी हियर, express each of the following as the product of prime factors only in the exponential form. That means you have to find out the prime factors and then you will express it in the exponential form. So just see the children this question, that is 729 into 64. 729 into 64. अब हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. तो सबसे पहले हम किसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 729 के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729. अब 729, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस सीइंग दिस नंबर, इस नंबर को देख हम ये बोल सकते हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है, बट अब हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक कर सकते हैं. 9 + 2 इज 11, 11 + 7 इज 18, 18 3 की टेबल में आता है, मीन्स दिस नंबर इज टोटली डिविजिबल बाय 3. सो स्टार्ट फ्रॉम 3. सो 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9. Now again 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9. So again it is divisible by 3. Children, I hope that you might be knowing the divisibility. Now 3 8s are 21, 3 1s are 3. Now again by 3, so 3 2s are 6 and 3 7s are 21. Now 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So these are the prime factors of 729. Similarly, इसी तरीके से हम 64 की भी prime factors find out करेंगे. So just see here. Now finding the prime factors of 64 by 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So children, we have just got the prime factors of 729 and 64. अब हम इसको लिख सकते हैं. Is it clear? तो 729 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. That is, we will take the product of 3 for the 6 times. So कैसे लिखेंगे, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 6 times, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Now similarly
हमको किसके प्राइम फैक्टर्स लिखना है? 64 के. सो 1 2 3 4 5 6. अगेन 2 is repeating for the 6 times. So sign is of multiplication again. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and into 2. Again 2 is repeating for the 6 times. 2 भी यहाँ पे 6 टाइम्स आ रहा है. 1 2 3 4 5 6. अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट. कैसे लिख सकते हैं इसको? 3 to the power 6 बिकॉज 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इट फॉर द 6 टाइम्स. तो पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6. सिमिलरली 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड अगेन बाय 6 टाइम्स. तो इसको भी हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 to the power 6. नाउ अब आप देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? सेम है. तो यू कैन अप्लाई द लॉ इन दिस केस. जब बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट यदि सेम है तो आप फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे लगा सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं इसको? दैट इज टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड कीपिंग द एक्सपोनेंट सेम. दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस a to the power m into b to the power m is equal to a into b whole to the power m. ये है हमारा फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सो 3 into 2 is 6. So your answer comes out to be 6 raised to the power 6. आंसर क्या आ गया आपका? 6 raised to the power 6. I hope children you are getting now. We'll just move to the next question. Now just see here children, what is the next question over here? Now children you have to simplify. जब हमारे पास सिंप्लीफाई वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि हमें उस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इज इट क्लियर? जब हम सिंप्लीफाई वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि हमें उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गॉट इट? नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर चिल्ड्रन. सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करना है आपको. किसको सिंप्लीफाई करना है? सो जस्ट सी द क्वेश्चन. दैट इज 25 into 5 to the power 2 into t to the power 8 whole upon 10 to the power 3 into t to the power 4. ये आपको सिंप्लीफाई करना है. मतलब आपको इसमें वैल्यू निकालनी है. आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यूज़ करना ही पड़ेंगे. इज इट क्लियर? नाउ वी कैन राइट आउट. तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? 25 को कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली 5 to the power 2 क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है. तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5 to the power 2. 25 को हमने रिप्लेस करा है 5 की पावर 2 से. यह 5 to the power 2 you will just write it as it is into t to the power 8. now अब 10 5 into 2 लिख सकते हैं. 10 को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 5 into 2 या 2 into 5. तो हम इसको लिखते हैं 5 into 2. 10 की जगह क्या लिख दिया? 5 into 2. क्या था एक्सपोनेंट? 3. उसको एज इट इज रहने देंगे, एज सच लिख लेंगे into t to the power 4. ठीक है? आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब नाउ 5 to the power 2 into 5 to the power 2. When the base is same and the powers are different and the sign is of multiplication, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? We will just add the exponent. तो हम इसको लिख सकते हैं 5 to the power 2 plus 2 into t to the power 8. एक स्टेप में हमेशा हम एक ही लॉ यूज करेंगे. We will not apply more than one law for the one step. तो ये हो गया हमारे पास 5 to the power 2 plus 2 into t to the power 8. Is that clear? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको एज सच रहने दो अभी. 5 into 2 whole to the power 3 into t to the power 4. अब टिल हियर इज इट क्लियर? ठीक है. अब यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज करा है वो हम मेंशन कर देते हैं.
since a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। जब बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और साइन यदि मल्टीप्लिकेशन का है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। नाउ 5 to the power 4 into t to the power 8, गॉट इट। अब हम क्या कर सकते हैं इस स्टेप में, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो 5 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू t to the power 4। कौन सा लॉ लगा रहे हैं? फोर्थ लॉ। जब बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस a to the power m इंटू b to the power m इज इक्वल्स टू a इंटू बी होल टू द पावर m। ये हमने लगाया फोर्थ लॉ। मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड वाली चीज़ तो थी, हमने उसको क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में स्प्लिट अप कर दिया। तो हमारे पास बन गया 5 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू t to the power 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। नाउ जस्ट सी हियर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 to the power 4 और नीचे 5 to the power 3 डिवीजन में। इज इट क्लियर? दिस थिंग इज इन द डिवीजन। तो क्या हो जाएगा, जब बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और साइन यदि डिवीजन का है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 to the power 4 minus 3 इंटू t to the power 8 अपॉन होल अपॉन क्या आ जाएगा, 2 to the power 3 इंटू t to the power 4। इज इट क्लियर? सिर्फ हमने 5 to the power 4 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3 में लॉ लगाया है। हमने सेकेंड लॉ लगाया है तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। सिंस a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। सेकेंड लॉ लगाया है, जब हमारे पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और साइन यदि डिवीजन का है तो हम एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, 4 minus 3 is 1। तो 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 ही होता है, इंटू t to the power 8 अपॉन 2 to the power 3 इंटू t to the power 4। इज इट क्लियर? अब फिर से हम लॉ लगा सकते हैं। तो हमारे न्यूमेरिक सेक्शन में तो कोई लॉ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे t to the power 8 डिवाइडेड बाय t to the power 4 है। वापस से सेकेंड लॉ को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है, इंटू t to the power 8 माइनस 4। वापस से सेकेंड लॉ लगाएंगे क्योंकि t की जो पावर्स है वो डिवीजन में है। तो वापस से सेकेंड लॉ मेंशन कर देते हैं, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 8, 8 माइनस 4 इज 4, t की पावर 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया है, 5 अपॉन 8 इंटू टी की पावर 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? So in this way, using the laws of exponent, you can solve such type of question. Now we will just solve the questions based on the decimal number system. So just see the next question, children. What is a decimal number system? जब कोई भी नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम उसे एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। कई बार नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स सी बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट हाउ वी आर यूजिंग द डेसिमल नंबर सिस्टम एंड एक्सपेंडेड फॉर्म टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ जस्ट सी चिल्ड्रन, just see the next question over here. What is the next question? That is, express the following numbers in standard form. जो नंबर आपको दे रखा है आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पे, that is 3 1 8 6 5 0 0
0 0 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट्स क्वाइट अ टिपिकल जॉब टू जस्ट रीच सच टाइप ऑफ अ बिगर नंबर। तो हम क्या करते हैं, इन बड़े नंबरों को, इन लार्ज डिजिट्स वाले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो यूजिंग दैट डेसिमल नंबर सिस्टम वी विल जस्ट राइट दिस पर्टिकुलर नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी भी बड़े नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो फर्स्ट डिजिट के बाद हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, और डेसिमल के बाद वाली जितनी भी डिजिट्स होती है उसको हम 10 की पावर्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो विल जस्ट पुट द डेसिमल, हम 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो आई एम जस्ट राइटिंग 3 डॉट। ओके, अब इसके बाद कितनी डिजिट्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 3 के बाद 9 डिजिट से जिसको हम 10 की पावर्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो वी विल जस्ट राइट 3.1865। अब आप बोलोगे कि हम बाकी के जीरोस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद चाहे कितने भी जीरोस लगा दो उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहता है, उसकी कोई भी वर्थ नहीं होती है। तो इसलिए हम 5 तक की लिखेंगे, तो उसके बाद सारे नंबर्स क्या हैं, 0 हैं। सो 3.1865 कितने डिजिट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 10 to the power 9. So your answer in the standard form is 3.1865 into 10 to the power 9. Now please move to the next question. We will just take one more example over here, children. So what does the next part says? Suppose करो हमारे पास एक नंबर दे रखा है 390878. This was the A part. Now just see the next part. That is 390878. इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे और बाद वाली जितनी भी डिजिट्स है उसको 10 की पावर्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 3.90878। तो 3 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 into 10 to the power 5. So this is the required standard form. Is it clear, students? Now we'll just move to the next question. अब next question क्या है कि आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है और आपको पर्टिकुलरली नंबर लिखना है, एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। सो जस्ट लेट्स टेक वन एग्जांपल ओवर हियर। जस्ट सी, अभी तक क्या कर रहे थे, हम बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे। अब हमको क्या दे रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है और हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। सो हाउ टू राइट इट डाउन, जस्ट सी, find the number from each of the following expanded form. So 4 into 10 to the power 5 into plus 4 into 10 to the power 5 plus 5 into 10 to the power 3 plus 3 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 0. Now you have to write the number from this expanded form. अब कैसे लिखेंगे, 4 into 10 की पावर 5 है, मतलब 4 के आगे क्या आ जाएंगे, 5 zeros आ जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 10 की पावर 4 में कोई भी नंबर नहीं है। ओके, इट मीन्स ऑब्वियसली वो क्या है, 0 है। अब क्या देखा, 5 इंटू 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 3 मतलब क्या बन जाएगा, 5000, दैट इज 5000। फिर 3 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 300। पावर 1 में हमारे पास कोई नंबर नहीं है। फिर लास्ट में हमें देखा 2 इंटू 10 की पावर 0। आपको पता है बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1।
जब भी किसी नंबर की डिग्री यदि 0 होती तो आंसर हमेशा यूनिटी होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2। अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। सो इट्स वेरी मच ईजी, सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। 4 0 5 ओके 3 0 2। सो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 405302। Is it clear, students? I hope, children, whatever the questions we have solved, you understood it well. So please keep on practicing more questions on this chapter. Thanks. Okay.